Good morning, students. Now you are looking everywhere is lockdown, as the instructions given by the government that in lockdown we will stay in our room, but in our home we will start studying. We will not sit without work. So we will start our studying, and we are trying to provide you the materials by the various ways. So today I will start to teach English literature of class 8, and the very first chapter, Annie bakes a cake. Actually, the chapter I have told you already कि आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ के और अपने आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट स्टिल केवल एक बच्चा शौर्य ही अभी तक इस चैप्टर से चीज़ों को दिखा पाया है. ओके, ऐसा मुझे फील हुआ कि मुझे एक वीडियो क्लास इससे रिलेटेड देना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम है, जो बच्चे दूसरे और बच्चे हैं नहीं पढ़ पाए या नहीं समझ पाए. तो लेट यू सी, वी विल स्टार्ट दिस फर्स्ट चैप्टर, एनी बेक्स अ केक. दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम अ नॉवेल एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स, written by Alan Montgomery. Alan Montgomery has written this novel, and this lesson has taken from that novel, Annie of Green Gables. So let me see some introduction which is given just above of the book about Annie of Green Gables. Actually, it was published in 1908. It is a classical novel written by Alan Montgomery. This story is about Annie Shirley. She is a orphan girl adopted by Matthew and Marilla Cuthbert. Cuthbert, who was brother and sister, live in a farm called Green Gable in Avonlea. Avonlea is a place where Matthew and Marilla Cuthbert is living there. Green Gable, you can say, it is the name of his house where the family live, Matthew and Marilla Cuthbert and Annie. It has told Annie is a adopted girl. Who is adopted? Matthew and Marilla Cuthbert. Both has adopted this girl, Annie. Now, Avonlea is a very small village. It is a rural area, and in this rural area, Annie and his family lives in a home whose name is Green Gable. Now let me see, in that Avonlea, a minister come to this city. Let you understand, a minister is not as we have studied in our social science. Actually, minister, according to this book,
in Avonlea, a new minister has come. This minister is a person whom appointed by the church, who cares the citizen of that area. The role of the ministers was to work with the community and help those in need. तो ये वो मिनिस्टर नहीं है जो आजकल हम देखते हैं या जो हम करते हैं. एक्चुअली ये अवॉनली में ये ऐसी प्रथा है कि चर्च द्वारा एक पर्सन नियुक्त होता है जो वहाँ के लोगों के आवश्यकता और नीड को पूरा करता है. तो अवॉनली में भी एक चर्च है और वहाँ पर एक मिनिस्टर आता है, एक मिनिस्टर आता है जो कि विवाहित है. मिनिस्टर और उसकी वाइफ दोनों उस चर्च में आते हैं ताकि वो उन लोगों को, वहाँ की कम्युनिटी को हेल्प कर सकें, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे और दूसरे कार्यों में हो, चाहे उनके धार्मिक कार्यों हो. तो ऐसा समझें कि मिनिस्टर का वर्क उस चर्च से जुड़े बहुत सारे लोगों की मदद करना होता है. वेरी ऑफन द मिनिस्टर्स वाइफ कुड आल्सो टीच. जो मिनिस्टर की वाइफ होती है वो वहाँ के लोकल स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है. तो ये इससे रिलेटेड ये एक स्टोरी है. अब इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अब बहुत ध्यान से देखिएगा. द न्यू मिनिस्टर एंड हिज वाइफ वेयर यंग प्लेजेंट फेस कपल still full of enthusiasm for their chosen life work. So the person who has come, the new person who has came, it has told minister. So minister and his wife both are young, very energetic and pleasant face couple. दोनों बहुत अच्छे हैं और सदा उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है. प्लेजेंट फेस कपल माने उन दोनों के चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता झलकती रहती है और ऊर्जावान है. जो काम उन्होंने लिया है उसके प्रति वो बहुत ही ऊर्जावान है. Avonlea opened his heart to them from the start. तो जब वो अवोनली में आते हैं, अवोनली शहर का नाम है, जब उस शहर में आते हैं तो उस शहर के लोग उस नए कपल का, नए मिनिस्टर का खुले दिल खोलकर उसका स्वागत करते हैं. Everyone liked the cheerful young man and the bright gentle lady who was his wife. तो अवोनली के हर व्यक्ति जो है उस नौजवान और उस सुंदर और विनम्र महिला का खुले दिल से स्वागत करते हैं. Annie fell promptly in love with Mrs. Allen. तो अभी उनका नाम होता है मिस्टर एलन. जो मिनिस्टर होते हैं उनका नाम होता है मिस्टर एलन और उनकी पत्नी को मिसेस एलन इसमें बताया गया है. तो एनी बहुत जल्दी मिसेस एलन की तरफ आकृष्ट हो जाती है. सेड डिस्कवर्ड एन अदर काइंडर स्पिरिट. तो एनी जो है वो क्या है, वो जो ग्रीन गैबल में जो फैमिली रहती है, मैथ्यू और मारिला कुथबर्ट, उनकी गोद ली हुई बच्ची है एनी. तो एनी भी उनके साथ जाती है उस वेलकम में. जब वो मिनिस्टर्स आते हैं तो सभी लोग उनका दिल खोल के स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं. तो एनी भी जाती है और एनी जो है वो बहुत जल्दी ही मिसेस एलन के प्रति आकर्षित हो जाती है. नो मिसेस एलन इज लवली शी अनाउंस्ड. एनी कहती है कि मिसेस एलन बहुत सुंदर है. एनी तारीफ करती है कि जो न्यू मिनिस्टर हैं उनकी वाइफ बहुत सुंदर है. शी इज टेकन आवर क्लास एंड शी इज स्प्लेंडिड टीचर. एनी बताती है कि इन्होंने हम लोग का क्लास लिया है. बताया पहले ही ऊपर बताया कि वो वहाँ के लोकल स्कूल में टीच भी करती हैं.
तो एनी कहती है कि उन्होंने हम लोग का क्लास लिया हुआ है और वो बहुत अच्छी अध्यापिका भी हैं। She said we would ask her many questions we liked and I asked so many। वो कहती हैं कि उनसे हम बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं और मैंने तो बहुत पूछे भी हैं, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। I am good at asking questions। मारिला कहती है, आप तो जानते ही हैं, मारिला से वो कहती है नहीं कि आप तो जानते हैं कि मैं प्रश्न पूछने में बहुत आगे हूँ। तो इस तरह से एनी जो है उनसे मिसेस एलन से इस तरह से बहुत जल्दी उनके आकर्षण में आ जाती है। आई बिलीव यू वाज मैरिला रिप्लाई। मैरिला कहती है कि हाँ मुझे विश्वास है तुमने ऐसा किया होगा, तुम बहुत सारे प्रश्न करती हो, ठीक है। तो मैरिला जो कि एनी की माँ है, और एनी कौन है? एडॉप्टेड बेबी है। तो मारिला ऐसा उनको रिप्लाई करती है एनी को, यहाँ मुझे विश्वास है कि तुम बहुत सारे प्रश्न पूछी होगी। आई सपोज वी मस्ट हैव मिस्टर and Mrs. Allen to tea party said मारिला रेस्पेक्टिवली। एनी और मारिला दोनों आपस में बात करते हैं। मारिला कहती है कि हमें मिस्टर और मिसेस एलन को अपने घर टी पार्टी पे बुलाना चाहिए। मारिला विनम्रता पूर्वक एनी से ये बात कहती हैं। आई हैव हर्ड दे हैव बीन एवरीवेयर बट हियर लेट मी सी। आई हैव हर्ड दे हैव बीन एवरीवेयर बट हियर let me see next Wednesday would be a good time to have them। मारिला कहती है कि मैंने सुन रखा है कि ये हर जगह जाते हैं, जहां वो रहते हैं वहां सभी के वहां जाते हैं, तो हमें भी इनको अपने घर बुलाना चाहिए। और वो नेक्स्ट वेडनेसडे माने आने वाले वेडनेसडे का टाइम मिस्टर और मिसेस एलन से टी पार्टी के लिए अपने घर लेती हैं। कौन लेती हैं? मारिला और उनकी बेटी एनी। नाउ सी वी हैव रीच्ड एट फिफ्थ वन। ओ मारिला विल यू लेट मी मेक अ केक सेड एनी। ओ मारिला विल यू लेट मी मेक अ केक सेड एनी। I had loved to do something for Mrs. Allen and you know I can make a good cake। मारिला कहती हैं कि तुम हमारे लिए एक सुंदर, तुम उन लोगों के लिए एक सुंदर केक बनाओगी। मारिला कहती है कि एलन, आप तो जानती हैं कि मिसेस एलन को मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं उनके लिए कुछ भी करूँगी, मैं उनके लिए एक अच्छा केक बनाऊँगी। आई हैव लव टू डू समथिंग फॉर मिसेस एलन। मैं मिसेस एलन के लिए, मैं मिसेस एलन के प्यार के लिए कुछ भी करूंगी। एंड यू नो आई कैन मेक अ गुड केक। और एनी कहती है आपको तो पता ही है कि मैं एक अच्छा केक बनाती हूँ। तो मारिला कन्विंस कर लेती है एनी को एक केक बनाने के लिए, जो कि इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा मिसेस एलन और मिस्टर एलन को जब वो उनके घर टी पार्टी पर आएंगे। यू कैन मेक अ लेयर केक प्रॉमिस्ड मारिला। मारिला कहती है एनी से कि तुमको साधारण केक नहीं बनाना है, तुमको लेयर केक बनाना है। यू नो अबाउट द लेयर केक, जो कई सारे लेयर्स में आपने देखा होगा, सफ़ों में आता है। एक केक तो सिंपल होता है और कई सारे लेयर्स में, हाँ? तो ऐसा लेयर केक बनाने के लिए मारिला जो है एनी को तैयार करती है। तो इस तरीके से हम ये 7th 6th पैराग्राफ पढ़ चुके। 7th लेट मी सी। थ्रू आउट मंडे एंड ट्यूसडे ग्रेट प्रिपरेशन वेंट एट ग्रीन गैम्बल्स। हैविंग द मिनिस्टर एंड हिज वाइफ टू टी was an important matter and Marilla was determined not to be outdone by any of the Avonlea housekeepers. Annie was wild with excitement. तो यस, दोनों बहुत उत्साहित होते हैं। एनी काफी उत्साहित होती है और वो पूरे मंडे और ट्यूसडे को बहुत सारी तैयारियां करते हैं। ठीक है, ग्रीन गैम्बल में वेडनेसडे को मिस्टर और मिसेस एलन आने होते हैं टी पार्टी के। इसके लिए मारिला एंड एनी मंडे और ट्यूसडे को बहुत सारी
तैयारियां करते हैं। बहुत सारी तैयारियां किस लिए? उनके आने पर जो उनका वेलकम किया जाएगा, उसमें जो चीजें उनको डिलीवर की जाएंगी, उसके लिए वो बहुत सारी तैयारियां करते हैं। Having the minister and his wife to tea was an important matter, and Marilla was determined not to be outdone by any of the Avonlea housekeepers। जैसा कि वो मानते हैं कि उनके घर जो है मिनिस्टर आ रहे हैं, और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो मिनिस्टर नहीं है, ये अलग मिनिस्टर हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि पहले जो है चर्च के अंदर जो है मिनिस्टर्स होते थे। एक पर्सन होता था जो उस चर्च से जुड़े लोगों की देखभाल, उनकी समस्याओं का समाधान करता था। तो ये वही मिनिस्टर हैं। तो मैरिला कहती है कि हमारे वहाँ वो मिनिस्टर आने वाले हैं, मैं और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं उनका स्वागत इस तरह से करूंगी कि एवोनली में किसी के घर वैसी स्वागत उनको नहीं मिली होगी। ऐसा जो है मारिला एनी से कहती हैं। एनी वॉज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट है एनी के अंदर, क्योंकि वो मिसेस एलन को बहुत ही पसंद करती है। मिसेस एलन उसके लिए ऐसा कहें कि एक रोल मॉडल है। तो बहुत एक्साइटमेंट है एनी के अंदर। वो इस बात को शी टॉक्ड इट ऑल ओवर विद फ्रेंड्स डायना एंड दे सेट ऑन अ बिग रेड स्टोन बाय ड्रैड्स बबल। ड्रैड्स एक नाम है जिनका घर होता है, उनके सामने एक रेड स्टोन है। उस रेड स्टोन पर एनी ये बात अपनी फ्रेंड डायना को बताती है। एनी इतनी एक्साइटमेंट है कि इस बात को कि हमारे वहाँ मिनिस्टर्स, हमारे वहाँ मिस्टर एलन एंड मिसेस एनएल हमारे घर टी पार्टी पे आ रहे हैं। वो इसकी सूचना अपने सभी फ्रेंड्स को बताती है, और यही चर्चा वो डायना से कर रही होती है। ड्रैड्स बबल ड्रैड्स का जो घर है उसके सामने एक बड़ा सा रेड स्टोन होता है। उस रेड स्टोन पर बैठकर वो डायना से इसी की चर्चा कर रही होती है। Everything is ready, Diana, except my cake, which I have to make in the morning, and the baking powder biscuit which Marilla will make. एनी कहती है डायना से कि सारी चीजें तैयार हैं सिवाय उस केक के जो कि मैं उसको कब, विच आई विल मेक इन द मॉर्निंग, जो मैं वेडनेसडे मॉर्निंग को बनाऊंगी, एंड द बेकिंग पाउडर बिस्किट विथ मारिला विल मेक, और मारिला बेकिंग पाउडर बिस्किट बनाएंगी। ये दो चीजें अभी बनानी है जो उस दिन मॉर्निंग में बनेगी, बाकी सारी चीजें तैयार हैं। ओ डायना, मारिला एंड आई हैव हैड अ बिजी 2 days फॉर इट। तो एनी बताती है डायना से कि हम दो लोग इसके लिए, दोनों लोग, मैं एनी और मारिला, हम दोनों लोग 2 दिन बहुत ही व्यस्त रहे हैं। आई हैड नेवर हैड सच एन एक्सपीरियंस बिफोर। एनी कहती है कि इसके पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, मेरे पास कोई ऐसा इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था। यू शुड सी आवर पार्टी, यू शुड सी आवर पैंट्री, तुम्हें हमारा, यू शुड सी आवर पैंट्री, तुम्हें हमारा पैंट्री देखना चाहिए। वी विल हैव 2 kinds ऑफ जेली। वो कहती है कि जो पैंट्री जिसमें वो चीज़ें रखी है, जो केक बनाने वाली चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को वो कहती है कि तुमको हमारा पैंट्री देखना चाहिए। उस पैंट्री में क्या क्या है। वी आर टू हैव 2 kinds ऑफ जेली, 2 तरह की जेली है। कौन कौन? रेड जेली एंड येलो जेली, विथ विस्पर्ड क्रीम एंड लेमन पाई एंड चेरी पाई, एंड 3 kinds of biscuit, fruit cake, Marilla's famous yellow plum preserve that she keeps especially for ministers, and pound cake and layer cake। तो इतनी सारी चीजें उन्होंने तैयार की हैं, किसके लिए? मिस्टर एलन एंड मिसेस एलन के लिए बहुत सारी चीजें तैयार की हैं, एक्सेप्ट केक के अलावे भी। आई जस्ट ग्रो कोल्ड व्हेन आई थिंक ऑफ माई केक लेयर। I just grow cold when I think my cake layer. Oh Diana, what if it is not any good? तो एनी बताती है डायना से
कि मैं एकदम सिहर जाती हूँ जब मैं उस लेयर केक के बारे में सोचती हूँ। आईना कहती कि क्या होगा अगर जो वो केक अच्छा नहीं बना। इट विल बी डन ऑल राइट सेड डायना। डायना उसको धाड़स लाती है, घबराओ नहीं, सारी चीजें सही होगी। एनी को डर है कि अगर केक नहीं बना तो क्या होगा, ऐसा सोच के वो सिहर जाती है, लेकिन डायना उसको सांत्वना देती है, घबराओ मत, सब चीज ठीक होगा। Yes, but cake have such a terrible habit of turning out badly just when you want them to be good. Sign आईना। आईना कहती है कि ये बहुत ही टेरेबल वर्क है, बहुत डिफिकल्ट वर्क है सही केक का बनाना। यस बट केक हैव अ टेरेबल हैबिट ऑफ टर्निंग बैडली जस्ट। ये बहुत ही टेरेबल होगा अगर आप केक अच्छा बनाना चाहते हैं और वो अच्छा ना बने। However, I suppose I shall just have to trust that it will turn it well. कहती है कि नहीं, मुझे ये आशा है, विश्वास है, मैं मानती हूँ कि जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें सही होगी। इसके अलावा कि ये बहुत कठिन काम है, जब आप चाहें कि केक अच्छा बन जाए तो उस समय अच्छा बन जाना ये बहुत टेरेबल है। फिर भी मैं ये मानती हूँ कि सारी चीजें अच्छे से होंगी, ऐसा एनी डायना से कहती है। और फाइनली दैट डे कम्स, वेडनेसडे मॉर्निंग केम एंड ही गॉट अप एट सनशाइन बिकॉज ही वाज टू एक्साइटेड टू स्लीप। Annie got up at sunshine because she was too excited to sleep. She had catch a severe cold by playing in the spring the previous evening, but nothing short of pneumonia. Yes, the word pneumonia, you see, nothing short of pneumonia could have stopped her that morning. Only a dangerous illness such as pneumonia could have stopped her. तो उस दिन वेडनेसडे का दिन आता है। एनी थोड़ा लेट से उठती है, मतलब जब सूरज निकल जाता है उस समय उठती है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड होती है। पिछली रात वो बहुत एक्साइटेड होती है और पिछली रात को काफ़ी ठंड भी रहती है और उस ठंड में वो खेलती है। ठीक है, ठंड में उस ठंड में वो खेलती है, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि उसे फ्यूमेनिया एक बीमारी होती है जो बहुत ही डेंजरस बीमारी है, जो जनरली ठंड में हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि हो जाता है उसको फ्यूमेनिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठंड के कारण, ठंड में खेलने के कारण ऐसा हो सकता था कि फ्यूमोनिया उसको हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शी वाज ऑल राइट, वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा लेट से उठी है, ठीक है। और आफ्टर ब्रेकफास्ट शी प्रोसीडेड टू मेक केक। व्हेन शी फाइनली शट द ओवन डोर शी ड्यू अ लॉन्ग ब्रीथ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो केक को बनाना शुरू करती है और फाइनली वो उस केक को ओवन के अंदर डाल देती है और एक लंबी सांस लेती है। जैसे आप लोग भी कोई बहुत कठिन काम करते हैं तो जब वो काम खत्म हो जाता तो एक सांस खत्म हो गया, उसी तरह से एनी भी, जो कि उसके लिए एक टेरेबल वर्क है इस केक को बनाना, तो सारी चीज़ें करने के बाद उस केक को पकने के लिए ओवन में रखती है और एक लंबी सांस लेती है। आई एम श्योर आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग दिस टाइम। मारिला, वो मारिला से कहती है कि आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग दिस टाइम। इस समय मैं कुछ भी नहीं भूली, मैंने सारी चीजें सही से की हैं, वो मारिला को बताती है। बट डू यू थिंक इट विल राइज? मारिला कहती है क्या तुम ये सोच, बट डू यू थिंक, लेकिन क्या तुम सोचती हो कि ये सब चीजें सही होगी? इट विल राइज माने केक अच्छा बनेगा। जस्ट सपोज द बेकिंग पाउडर इज नॉट गुड। कहती हैं मारिला कि क्या तुम सोचती हो कि सारी केक हमारा सही होगा? मारिला कहती है लेकिन कल्पना करो कि अगर उसका बेकिंग पाउडर जो केक में मिलाया जाता है, जिससे केक बनाया जाता है, तो मारिला कहती है कि सोचो, या ये सोचो कि अगर उसका बेकिंग पाउडर ठीक नहीं हुआ तो मिसेस लैंडी कहती हैं कि
मिसेस लैंडी सेज यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ गेटिंग गुड बेकिंग पाउडर नाउडेज। जो कहती हैं कि आज आप लोग आज के समय में आप सोचें कि आपको बेकिंग पाउडर बहुत अच्छा मिल जाए तो ये संभव नहीं है। तो बेकिंग पाउडर सबके वहाँ एक जैसा ही है, बहुत अच्छा और बहुत खराब की कोई बात नहीं है। मारिला, व्हाट इफ दैट केक डज नॉट राइज। मारिला कहती है कि अगर केक अच्छा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। वी हैव प्लेंटी विदाउट इट सेड मारिला, वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम। मारिला कहती है कोई बात नहीं, अगर केक बहुत अच्छा नहीं हो तो इसके सिवाय भी हम बहुत सारी चीजें बना रहे हैं जो उनको रिप्रेजेंट कहते हैं। वॉज मैरिलाज वे ऑफ लुकिंग द प्रॉब्लम। और इस तरह से मैरिला उस सोल्यूशन के लिए तैयार रहती है कि अगर केक नहीं भी अच्छा बना तो उसकी जगह पर हम दूसरी बहुत सारी चीजें उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी ये हम 13 पैराग्राफ तक पढ़ चुके हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो अभी मैं यहाँ तक 13 पैराग्राफ तक ये आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में होगा।